Hello student, welcome to the Arihantam Academy YouTube channel. The student, today we will talk about the subject of chemistry related to that physical chemistry, and today I am going to start the chemical kinetics chapter number 4 of the physical chemistry right now. क्योंकि थर्ड चैप्टर तक हम लोग बेसिकली पढ़ चुके हैं, so we have to start with the fourth chapters, and the chapter name is so called as chemical kinetics. So it's a chapter reflect their properties, that chemical kinetics पहले समझना हमें कि what we have to study in this chapter and how we can go through this chapter. We have to understand step by step. ओके तो सबसे पहले आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है. टेक योर हेल्दी फूड एंड स्टे अवे फ्रॉम दैट अदर पर्सन्स, बिकॉज यू कैन से दैट according to the now the tradition is what that one person can affect the other person if it is affected by the coronavirus. So please stay safe from each other. Okay, तो बात करेंगे हम लोग. फर्स्ट we have to understand what is actually chemical kinetics, right, and what it does means. इसका मतलब क्या होता है. तो आपने दोनों वर्ड को ध्यान से अगर पढ़ा होगा आपने, chemical kinetics, the word itself define their definitions, right now. जैसे chemical means the chemical reactions and kinetics means their motion. अर्थात किसी रिएक्शंस के मोशंस को का एनालिसिस करना होगा तो आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की रिक्वायरमेंट होगी. तो वी कैन से दैट केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with that rate of reactions during the chemical process. कि how you can calculate the rate of reaction if the chemical reaction is proceeding, how you will define their mechanism during the chemical reactions. ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, केमिकल रिएक्शंस में. तो केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन हमें पहले समझना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड है. केमिकल मीन्स हो गया यहाँ पर केमिकल रिफ्लेक्ट केमिकल रिएक्शन, chemical reaction, and kinetics means their motion, their mechanism, their motion, their mechanism, their rate, their speed. So all these can understand in the chapter that is called chemical kinetics. तो chemical kinetics को हम लोग define कर सकते हैं. It is branch of chemistry. It is branch of chemistry which deals with study of rate of reaction, mechanism of reaction, and factors affecting rate of reaction, all these things comes under the chemical kinetics. ये सारी की सारी बातें आपको कहाँ समझना, chemical kinetics में समझना. Okay, now तो सबसे पहले चीज you have to know about what is the chemical reaction actually means. What is the chemical reaction, right now? What is chemical reaction? तो chemical reactions कहने का मतलब क्या होता है? It is a type of process where you can see that chemical process occurs. अब केमिकल प्रोसेस को समझने के लिए आपने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी देखा होगा कि केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट चेंजेस ओनली. तो केमिकल रिएक्शंस कहने का मतलब क्या हो गया, यानी वी कैन से दैट द रिएक्शन या द केमिकल प्रोसेस in which reactant undergoes chemical changes, to produce product. यानी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, दैट केमिकल चेंजेस और केमिकल प्रोसेसेस एक्चुअली मींस केमिकल रिएक्शंस, राइट ना. ओके, ना कुछ पुरानी बातें हम एक बार रिकॉल कर देते हैं ताकि आप क्लास में कनेक्ट हो जाए. लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द केमिकल चेंजेस, राइट ना. तो chemical changes, how you identify chemical changes, how you identify
केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कहां पर केमिकल चेंजेस हो रहा है, राइट ना। तो दैट मींस देखो केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने सेवरल टाइप ऑफ चेंजेस देखा होगा। लाइक जैसे फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं चेंज इन कलर, वी कैन से दैट चेंज इन कलर। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहां पर देखते हैं हम लोग चेंज इन कलर। आपने देखा होगा चेंज इन कलर। तो कलर चेंज के थ्रू हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन dipped with zinc granules, then the color changes takes place with the formation of another compound. Like जैसे आपने पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, जिंक ग्रैनुअल्स का कलर व्हाइट होता है, देन जिंक सल्फेट का कलर व्हाइट हो जाएगा एंड कॉपर का कलर ब्राउन होता है। सो दीस टाइप ऑफ चेंजेस कैन डिफाइन देयर इज अ केमिकल चेंजेस कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है वहां पर। सो द कलर ऑफ केमिकल चेंजेस दैट मींस केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। नेक्स्ट आपने देखा होगा कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक हम लोग इफ यू हैव कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज ब्लू dipped with the iron nails as Fe, then FeSO4 plus copper is formed, and there iron has gray or black color, and FeSO4 has green color, and copper is as brown color. So change in color can analyze there is a chemical process proceeding, right? ना कि कोई ना कोई chemical changes हो रहा है जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते। दूसरा चीज देखिए यहाँ पर, सेकंड चीज जो you have to understand about that. The second thing, change in taste. टेस्ट चेंज को आप समझ सकते हैं कि जहां पर टेस्ट चेंज हो रहा है you can say that there is a chemical changes, कि वहां पर कुछ ना कुछ chemical change हो रहा है। लाइक जैसे milk as the catalyst as LAB means what? Lacto-acidobacillus bacteria। lacto-acidobacillus bacteria को LAB लिखते हैं। So when lab is added with milk, then this milk is converted in the form of curd। तो मिल्क के साथ अगर लैब मतलब lacto-acidobacillus bacteria, it is a type of bacteria, when some amount of this bacteria is added with milk, then milk is coagulated by their enzymes to convert in the form of curd। then ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, मिल्क में कौन सा ऐसा केमिकल होता है। so the milk has basically lactose which is sweet in taste, and in the presence of lab bacteria this lactose digests or convert or coagulate in the form of lactic acid। so this lactic acid has sour taste, then sweet taste sour taste में convert हो गया। so the change in taste is also defined there is a chemical process कि कुछ ना कुछ chemical changes वहां पर हो रहा है। so by this method we can identify कि chemical reaction is proceeding, right? okay, कुछ changes और हम समझ लेते हैं, कुछ चेंजेस और देखते हैं हम लोग जिसके बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शंस प्रोसीडिंग इन द नेचर और इन द लैब और इन द इंडस्ट्री, राइट ना। अब देखो थर्ड हम लोग कर सकते हैं। थर्ड लेट अस से दैट कलर चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया। थर्ड देखिए वी कैन से दैट इवोल्यूशन ऑफ गैस कि कुछ ना कुछ गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। बहुत सारे एग्जांपल है इसके, आप बोल भी सकते हैं। लाइक जैसे मान के चलो क्या है, if you have zinc metals reacts with sulfuric acid, so this is the metal reacts with sulfuric acid, then zinc sulfate plus hydrogen gas is produced। so we can say that evolution of gas as hydrogen can identified by the burning candle कि उसके पास अगर आप कैंडल ले जाते हैं तो पॉप साउंड क्रिएट होगा in the presence of burning candle, in the presence of burning candle pop sound can be created, राइट ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। आपने दूसरा और भी बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे। लाइक जैसे इफ यू हैव दैट Fe reacts with HCl, then FeCl2 plus hydrogen gas is formed, again hydrogen gas is produced। आपने और भी रिएक्शन देखा होगा when zinc
रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप कह सकते हैं यहां पर देखो, लेट अस से दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन Na2ZnO2 plus H2O plus CO2 is formed. Then again evolution of CO2 can confirm there is a chemical changes. तो इस तरीके से जो डिफरेंट गैस का इवोल्यूशन होता है उसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ओके, नेक्स्ट देखिए चौथा एग्जांपल, फोर्थ. We can say that so change in color, change in taste, change in gas, yeah sorry evolution of gas. Next, change in odor, चेंज इन ओडोर, कुछ ना कुछ गंध चेंज करके आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव फास्फोरस रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड in the presence of inert atmosphere, then these compound combine to produce NaHPO2 plus PH3. There is a gas and that gas is called phosphine. And this phosphine has rotting fish-like smell. तो अगर इस केमिकल रिएक्शंस में सड़े हुए मछली जैसा गंध आना शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं there is a chemical reaction proceeding with the formation of phosphine gas. So their smell is rotten fish-like smell. Then change in odor can say that reaction is proceeding. राइट ना. तो ये था हमारा चेंज इन कलर, ये हमारा चेंज इन टेस्ट, ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, और ये रहा हमारा क्या चेंज इन ओडोर. और भी बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हैं जिसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यस देयर इज अ केमिकल चेंजेस. आप लिख सकते हैं लाइक जैसे मान के चले एक और रिएक्शन हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पर, लेट अस से दैट, ताकि आप कनेक्ट हो जाएं कि अच्छा ऐसे हम केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे चेंज इन टेम्परेचर, हम लोग कह सकते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या चेंज इन टेम्परेचर, राइट ना. तो फिफ्थ पॉइंट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर चेंज के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हो रहा है. लेट अस से दैट चेंज इन टेम्परेचर कैसा होता है. तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, CaOH का होल्ड. And during this process you can say that heat is evolved, heat is evolved क्योंकि पानी जो होता है बॉयल हो जाता है, heat is evolved. और भी आप कह सकते हैं burning of carbon like C+O2, then we get CO2 again plus heat energy. तो burning of coal, all these are the exothermic process कि आपने रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक छोटा सा इग्निशन टेम्परेचर दिया एंड बदले में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला. जैसे कि किसी भी फ्यूल को कंबशन के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. यानी यहां पर आपको समझना है क्या इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर. तो इग्निशन टेम्परेचर कहने का मतलब द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर required for the combustion of fuel, for the combustion of fuel, for the combustion of fuel. तो फ्यूल को जलाने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है that minimum temperature is called your ignition temperature. So by this method we can say that yes there is a chemical changes occurs in the nature, occurs in the laboratory, occurs in the industry and whatever, कहीं पर भी आप बोल सकते हैं अगर ऐसा प्रोसेस चेंज हो रहा है तो. जैसे आपने देखा होगा if the iron material is exposed in the atmosphere then there is a process rusting is start. So rusting is an example of the chemical change, an example of the chemical reaction. So by this method we can identify there are several reactions occurs in the atmosphere. Clear है? I think so कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है ना. तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अरे यार ये तो बड़ा चल ठीक है, इसके पीछे शायद नहीं आएगा.
ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या किस टाइप से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक तो ये बच्चों वाली खेल है, अभी तक मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया, ये सब बच्चे बचपन में पढ़ना था आपको, बट वहाँ से आप लेक्चर में कनेक्ट हो जाते हैं। दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ टीचिंग। ओके, तो अब ध्यान में देखें यहाँ पर, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें समझना है क्या है, देखो हमें रेट को समझना है। तो रेट को समझने के लिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दैट मींस अगर आपने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो लेट अस से दैट कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, राइट, कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लेट अस से दैट कोई एग्जांपल है लाइक बेसिकली वी कैन से दैट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ऐसा कुछ मान लेते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया का थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग करवा रहे हैं, NH3 का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। सो 2NH3 मींस अमोनिया गैस heated in the presence of platinum, heated in the platinum rod at a higher temperature, then it decomposed in the terms of N2 plus 3H2, मतलब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो क्या हो रहा होगा इस रिएक्शंस में, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो चीज समझना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहला चीज जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या क्या चेंज हो रहा है, इनिशियल और फाइनली हम लोग देखेंगे। तो इनिशियली और फाइनली हम लोग देखेंगे, इनिशियली एंड फाइनली, ठीक है। तो चेंजेस देखिए क्या है, हम लोग पहले NH3 की बातें कर लेते हैं। तो NH3 की टर्म्स में देखो क्या होगा, अगर लेटेस्ट स्टेट कि आपने कुछ उसे मान लो ना कि अगर ये इक्वेशंस को देखते हैं तो इस मोल के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो कितना हो जाता है, 14 + 3 17 + 3 34, मतलब यहाँ पर 34 ग्राम, और यहाँ पर है आपके पास 28 + 6, मतलब मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिव डज नॉट फॉलो द मास ऑफ कंजर्वेशन रिएक्शन, बट नॉर्मल रिएक्शंस फॉलो द मास कंजर्वेशन लॉ। तो मास कंजर्वेशन के हिसाब से देखो ये 34 ग्राम था, तो व्हेन द रिएक्शन इज नॉट इवन इनिशिएटेड देन द प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, ये प्रोडक्ट नहीं बना होगा अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो इन दैट केस द टोटल मास ऑफ अमोनिया इज ओनली प्रोड्यूस्ड, तो ये प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब शुरू में सिर्फ मास होगा अमोनिया का, इसका मास नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता गया होगा, क्या सारा का सारा अमोनिया एक साथ नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में टूटा होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन हो रहा होगा। तो शुरू में क्या होगा, अमोनिया का देखते हैं तो मास डिक्रीज हो रहा होगा, इसका मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इनिशियली हाई है फाइनली लो है। तो हम लोग क्या देख पाते हैं कि मास में क्या हो रहा है, यहाँ पर पहला चीज चेंज जो हुआ, यानी इनिशियल मास m1 है तो फाइनल मास क्या है, m2 है, राइट ना। देन क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, चेंज क्या आ गया है, चेंज क्या आ जाएगा, यानी m2 - m1 = डेल्टा m, मतलब कुछ ना कुछ मास में चेंज हुआ होगा। दूसरा देखिए, यानी ये चेंज हम लोग एनालाइज कर रहे हैं किसका, तो चेंज इन मास। अब देखिए अगर मास चेंज हुआ तो आपने पढ़ा होगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। तो मास के टर्म्स में अगर चले, मास के बाद देन दूसरा चीज जो आपको एनालाइज करना है वो क्या हो सकता है, चेंज इन मोल्स। अब आप खुद देखिए, ध्यान देखिए यहाँ पर m1/m, m1/m is your n1 and m2/m is your n2. So this is given mass divided by molar mass, this is your initial number of moles. Final mass given by molar mass, this is your final number of moles. Then change in moles क्या है आपका, n2 - n1 = डेल्टा n। अब ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, मास अगर चेंज होता है तो सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीडिंग देन चेंज इन मास टेक्स प्लेस, चेंज इन मोल टेक्स प्लेस। नाउ फ्रॉम द रिएक्शन, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने बोला क्या, पहला चेंज हुआ क्या, मास, तो पहला चीज चेंज हुआ आपका मास, दूसरा चीज चेंज हो गया आपका क्या, मोल्स। अब मास और मोल्स में एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, मास और मोल्स में एक रिलेशन पढ़ा होगा नंबर के टर्म्स में। हम लोगों ने पढ़ा है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू
अवोगाड्रोस नंबर की, किसी में अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा या नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर मोल चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से दैट नंबर आल्सो विल चेंज। देन तीसरा चीज समझना है क्या आपको यहाँ पर, चेंज इन नंबर, change in number of atoms, number of atoms, molecule and ions की molecules भी change हो रहे होंगे, atoms भी change हो रहे होंगे, ions भी change हो रहे होंगे। then ये number n1 है, फाइनल नंबर n2 है, then change in number कितना आ गया, n2 minus n1 is equal to minus delta n। again this is change in mass, this is change in moles, this is change in number। so if any chemical reaction is proceeding, then mass can change with respect to time, number of moles of reactant or product can change with respect to time, number of atoms, molecules or ions can change with respect to time। so all these changes can occurs spontaneously with respect to time। इसलिए हम rate of reactions को change in mass के terms में define कर सकते हैं, change in mole के terms में define कर सकते हैं और change in number के terms में भी define कर सकते हैं। तो आगे चीज देखिए, यानी तीसरा चीज जो change हो गया यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो चेंज इन नंबर्स आ गया बेटा आपके पास, चेंज इन नंबर, नंबर कैन चेंज, तो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस कैन चेंज। अब चौथा चीज ध्यान दीजिए, देखिए अब एक चीज और समझिए, अगर if you have any reactant in the aqueous solution or if you have any reactant in the gaseous form, then the change in volume also takes place, वहां पर वॉल्यूम भी चेंज होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी गैसियस रिएक्शंस के लिए वॉल्यूम चेंज हुआ, then number per unit volume can define as the molarity of their reaction। तो मोलारिटी के टर्म्स में भी हम रिएक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो तीन चेंजेस और हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो देखते हैं हम लोग वो तीन चेंजेस क्या हैं। ठीक है, अब फिर से देखो, ये तीन मिटा देता हूं यहाँ पर, तीन और देखिए, तो ध्यान दीजिए, देखिए in terms of gaseous reactant, in terms of gaseous reactant, तो फोर्थ देखिए, इनिशियली अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2, देन क्या हो जाएगा आपके पास, चेंज कितना आ गया, V2 minus V1 is equal to delta V, and this is again decreasing in terms of reactant, कि reactant का वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम। अब आप खुद बताइए, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मोलैरिटी होता है, एंड देयर इज अ रिलेशन ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, देन वी कैन से दैट मोलैरिटी और एनी कंसंट्रेशन इज चेंजेस। तो हम यहां पर लिख सकते हैं चेंज हो रहा है किसका, कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है। तो कंसंट्रेशन के इनिशियल कंसंट्रेशन C1, फाइनल कंसंट्रेशन C2, then C2 minus C1 is equal to minus delta C, मतलब concentration is also changes with respect to time। then यहाँ पर देखिए पांचवा, change in क्या हो रहा है आपका, concentration हो रहा है, change in क्या हो रहा है, concentration हो रहा है। now छठा चीज देखिए क्या होता है चेंज। अब किसी केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे अमोनिया क्या है आपके पास, गैस है, नाइट्रोजन क्या है आपके पास, गैस है, हाइड्रोजन क्या है आपके पास, गैस है। Now, if you have only ammonia gas in a container without proceeding the chemical reaction, then this gas has tendency to exert a pressure on the vessels of that container। तो क्या होगा, उस वेसल्स के सरफेस पर अमोनिया गैस एक प्रेशर बनाएगा। कब, when the decomposition is not start, then the total pressure exerted in that case is the pressure equal to the ammonia gas only। सिर्फ और सिर्फ अमोनिया गैस है बर्तन में, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस बर्तन के सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ कौन गैस प्रेशर लगा रहा है, अमोनिया गैस प्रेशर लगा रहा है, इसलिए हमने अमोनिया गैस को डिफाइन किया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, नाउ इफ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, देन उस सिचुएशंस में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ अमोनिया इज डिक्रीजेस, amount of gas in terms of nitrogen and hydrogen is increased। in that situation the pressure exerted by the ammonia gas decreases and the pressure exerted by this nitrogen or hydrogen is increases। then the total pressure is the sum of partial pressure exerted by the ammonia, partial pressure exerted by the nitrogen and partial pressure exerted by the hydrogen। in that case what we have seen,
with respect to change in the chemical reactions, the pressure of ammonia gas is decreases. So in terms of gaseous reactant, rate of reaction can also determined by the change in pressure. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रेशर का चेंज किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर है प्रेशर, सो इनिशियल प्रेशर अगर P1 है, फाइनल प्रेशर अगर P2 है, then we can write P2 minus P1 is equal to minus delta P. Then delta P क्या डिफाइन करता है? चेंज इन प्रेशर। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑल दीज 6 कैरेक्टरिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को समझ सकते हैं एक एक करके कि मास चेंज में कैसे हो जाएगा, नंबर टर्म्स में कैसे आएगा, अलग अलग तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक सो, एग्जैक्टली, है ना? ओके चलिए, इस बार तो शायद सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओके अब चलिए हम लोग समझते हैं क्या है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मास। मास के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे समझेंगे, राइट है? क्या है आपके पास? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मास। तो मास के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ओके तो ध्यान देते हैं, देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मास का क्या मतलब बनता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी मतलब मान लेते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इफ यू हैव रिएक्टेंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट P, तो रिएक्टेंट को हम लोग R से डिनोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हम P से डिनोट कर सकते हैं। तो T इज इक्वल टू मतलब टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर पूरा का पूरा जो मास है वो रिएक्टेंट का है, ये कितना होगा? 0 होगा, राइट ना? पूरा का पूरा मास किसका? रिएक्टेंट का है, M1, प्रोडक्ट का है 0। नाउ विद रिस्पेक्ट टू टाइम T, आफ्टर टाइम T, सो टाइम इज इक्वल टू T सेकेंड। T सेकेंड पर हमने क्या देखा? ये माइनस x हो रहा है तो ये प्लस x हो रहा है, मतलब कुछ मास डिक्रीज हो गया। देन रिमेनिंग मास कितना आ गया? रिमेनिंग मास, सो द रिमेनिंग मास इज m1 minus x is equal to m2, और इसका रिमेनिंग मास x minus 0 is equal to x, यानी यहाँ पर मास x है, यहाँ पर मास m2 है। देन चेंज इन मास ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान दीजिएगा, देखिए चेंज सॉरी बेटा, चेंज इन मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में कितना मास चेंज होगा? तो हम लिख सकते हैं फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। तो लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। तो फाइनल मास है m2, इनिशियल मास है m1, देन क्या आ जाएगा? m2 माइनस m1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा m। यहाँ पर माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डिक्रीज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट ना? तो माइनस साइन का मतलब हम समझा देंगे यहाँ पर, देखो। नेक्स्ट, चेंज इन मास ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की चेंज, प्रोडक्ट के टर्म्स में मास का चेंज हो, देखिए फाइनल मास है x, इनिशियल मास है 0, यानी m2 minus m1 is equal to x minus 0 is equal to delta x. So this delta x is equal to delta m and that is your positive, यानी यहाँ पर चेंज इन मास पॉजिटिव है, यहाँ पर चेंज इन मास नेगेटिव है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन मींस डिक्रीज इन मास, डिक्रीज इन मास। प्लस साइन मींस क्या शो हो रहा है? इंक्रीज इन मास। प्लस का मतलब यहाँ पर इंक्रीज इन मास। तो प्रोडक्ट का मास इंक्रीज हो रहा है जबकि रिएक्टेंट का मास डिक्रीज हो रहा है टी टाइम में। तो हम लोग लिख क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? चेंज इन टाइम, so change in time is equal to T2 minus T1 is equal to delta T. So we can say that rate of reaction is equal to, ध्यान से देखिए यहाँ पर, so rate of reaction is equal to change in mass by change in time, change in mass by change in time। तो mass का change को change in time से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। then क्या क्या देखिए, change in mass m2 minus m1 divided by t2 minus t1। अब m2 minus m1 माइनस डेल्टा m भी है और प्लस डेल्टा m भी है, तो माइनस यानी प्लस माइनस डेल्टा m by डेल्टा t। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन मास ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, डिक्रीज इन मास ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या कॉमनली क्या लिखेंगे? चेंज इन मास पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसा यूनिट
मास के चेंज का यूनिट किलोग्राम, टाइम के चेंज का यूनिट सेकंड, सो इट इज कॉल्ड किलोग्राम पर सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड। अगर आप इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहते हैं तो मास के लिए m, टाइम के लिए t, m L0 T1, so mt is the dimension formula of this rate of reaction with respect to mass। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस रेट ऑफ रिएक्शंस को मास के टर्म्स में तीन तरीके से, कि प्रोडक्ट में मास इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट में मास डिक्रीज हो रहा है, और कॉमनली क्या हो रहा है, चेंज इन मास पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं। क्लियर बच्चा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। आई होप सो इट ऑल क्लियर्स। इट इज वेरी इजी चैप्टर फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशंस हमें लिखना है, तीन डेफिनेशंस हम लोग लिख सकते हैं और तीनों डेफिनेशंस हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। तो पहले चीज देखिए यहाँ पर क्या है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, द डिक्रीज इन मास, द डिक्रीज in mass per unit, so the decrease in mass per unit change in time, per unit change in time is called rate of reaction, is called rate of reaction। तो इसके हिसाब से डिफाइन करेंगे, क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा m बाय डेल्टा t। वैसे ही अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन करना हो, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या लिख सकते हैं, the increase in concentration, the increase in mass per unit change in time, per unit change in time is called rate of reaction, is called rate of reaction। तो किसके हिसाब से अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखिए, रेट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा m बाय डेल्टा t, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? सो दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करना हो तो क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिखना होगा तो क्या लिखें, द चेंज इन मास per unit change in, so the change in mass per unit change in time, per unit change in time is called rate of reaction। so this is your rate of reaction in terms of mass। ठीक है, फिर क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर